Hi guys, welcome to episode 20. In this episode, we are gonna learn how we can implement Google Maps in our iOS app. Okay, so before actually writing code to implement Google Maps, we have to follow few steps to set up Google Maps in our project. Okay, first we have to install Google Map ports in our project directory. Okay, then we will go to Google Developers Console. Okay, in Google Developers Console, we have to sign in with our Gmail ID. Then we will create a project on Google Developers Console. Okay, फिर हम इनेबल करेंगे गूगल मैप्स iOS SDK फॉर आवर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड. ओके, गूगल मैप iOS SDK इसलिए इनेबल करेंगे सो दैट आवर प्रोजेक्ट कैन एक्सेस गूगल मैप्स API. ओके, then we will generate iOS key for our project which is corresponding to our unique app bundle and identifier. ओके, उसके बाद हम उस iOS की को अपनी ऐप डेलीगेट फाइल में, अपने प्रोजेक्ट की ऐप डेलीगेट फाइल में सेव करेंगे. So these are the steps that we have to follow before start coding for implementing Google Maps. So one by one इन steps को follow करते हैं. Okay, so let's start. First of all, let's create a new project. Single view application, name it maps. Okay, next. So our project is created. So first of all we have to install Google Maps pod in our project. Okay, so अगर आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोकोआ पोड्स इंस्टॉल्ड नहीं है तो यू हैव टू वॉच एपिसोड 18. It was all about installing cocoa pods to your Mac operating system. Okay, so let's close our project. Here's our project, as you can see, maps. Okay, so pods इंस्टॉल करने के लिए मैं सबसे पहले टर्मिनल ओपन करूँगा. Then I'll type cd desktop as my project is on desktop. Then I'll type my project directory. I'll press tab, it will auto complete. Then I'll press enter और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एंटर करके I'll type this command pod init. Okay, so let's close this. So pod init करने से मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में pod फाइल क्रिएट हो गई. ओके, सो अपने टारगेट प्रोजेक्ट नेम डू के नीचे मैं pod का नेम लिखूँगा जो मुझे pod इंस्टॉल करना है. एंड I have to install Google Maps, so it is Google Map. Let me check the spelling. Google Maps. Okay, so I'll close it. It will automatically save the changes. I'll again open terminal, same process, cd desktop, cd my project directory. Okay, now I'll type the command pod install. ओके, सो जो भी पॉड का नाम मैं उस टारगेट मेरे प्रोजेक्ट के नाम के नीचे लिखूँगा. ओके, एंड उसके बाद पॉड इंस्टॉल कमांड रन एग्जीक्यूट करूँगा तो जो भी पॉड्स का नाम मैंने लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा आफ्टर प्रेसिंग एंटर. So as you can see, Google Maps pod are installed. Okay, so it took around I guess 3 to 4 minutes to completely install Google Map pods in my project directory. Okay, so we are done with the pods. Let's go to our project directory. So as you can see, Xif workspace file is there, so our pods has been installed. और pods install होने के बाद हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट को Xif workspace फाइल से ओपन करते हैं. ओके, सो यू कैन सी गूगल मैप pods आर हेयर. ओके, सो अब अगले कुछ नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करते हैं. लाइक वी विल गो टू गूगल डेवलपर्स कंसोल, then we will sign in with our Gmail account, then we will create a project there. Okay, so let's follow these steps. Google developer console, Google API console. सो मैंने ऑलरेडी अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन किया हुआ है. ओके, सो विल गो हियर एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट. यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे जो भी हम देना चाहें. ओके, सो मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैप्स के नाम से. सो आई वोंट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हियर. ओके, सो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आई विल गो टू गूगल मैप्स SDK फॉर iOS एंड उसे यहाँ पे इनेबल कर दूँगा.
ओके, सो ये मेरा गूगल मैप्स SDK फॉर iOS इनेबल हो गया है। ओके, सो अब अपने नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं क्या है। अब हम वी विल गो टू क्रेडेंशियल्स एंड वी विल जनरेट एन iOS की कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर एप्स बंडल आइडेंटिफायर। ओके, सो iOS की जनरेट करते हैं। क्रेडेंशियल्स, क्रिएट क्रेडेंशियल्स, API की, iOS की। ओके, यहाँ पे हम अपना बंडल आइडेंटिफायर डालेंगे, दैट इज़ दिस, कॉपी इट, paste it here, click on create, again click on create. Okay, so here's our iOS key. Okay, we'll copy paste it. Okay, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं कि वी हैव टू सेव दैट API key इन आवर ऐप डेलीगेट फाइल. Okay, so let's do it. Our app delegate file, first we will import Google Maps here, import Google Maps. Okay, then we'll use the GMS services class which is provided by Google Maps pod and provide API key. यहाँ पे हम अपनी API की पेस्ट कर देंगे. Okay, so now let's add core location framework in our project. Okay, general, target, linked frameworks, core location framework. ओके, कोर लोकेशन फ्रेमवर्क हमने इसलिए ऐड करा है सो दैट वी कैन यूज़ iOS SDK's इनबिल्ट क्लास दैट इज़ CL लोकेशन मैनेजर. तो देखते हैं व्हाट इज़ CL लोकेशन मैनेजर. CL लोकेशन मैनेजर बेसिकली प्रोवाइड अस आवर डिवाइस लोकेशन. ये हमारी डिवाइस की लोकेशन प्रोवाइड करता है हमें, एंड इट ऑल्सो ट्रैक्स द स्मॉल चेंजेस इन आवर डिवाइस लोकेशन. ओके, सपोज़ मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरी लोकेशन में चेंज हो रहा है, CL लोकेशन मैनेजर class is tracking all small changes. Okay, and it can also notify our app that whenever our location gets changed. Okay, through the use of some delegate functions. Okay, सो सपोज़ दिस इज़ माई डिवाइस, तो मेरी CL लोकेशन मैनेजर क्लास मुझे मेरी डिवाइस की लोकेशन प्रोवाइड करा सकती है विद द हेल्प ऑफ लेट एंड लॉन्ग, दैट इज़ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ओके, सो CL लोकेशन मैनेजर क्लास यूज़ करने के लिए मुझे पहले कोड लोकेशन फ्रेमवर्क इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी करा. ओके, देन मुझे प्ले लिस्ट में एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी दैट इज़ NS लोकेशन व्हेन इन यूजेज, सो दैट it can our app can notify user that our app is gonna use location services of iPhone device. Okay, देन मैं लोकेशन मैनेजर CL लोकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ. ओके, एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता हूँ. ओके, देन GMS मैप व्यू, जैसे मेरा नॉर्मल UI में व्यू होता है, सिमिलरली मैप शो कराने के लिए मैं यूज़ करता हूँ GMS मैप व्यू, जो कि गूगल मैप iOS SDK का पार्ट है. ओके, देन मैप व्यू कंटेन्स द होल वर्ल्ड मैप. ओके, मैप व्यू में पूरे वर्ल्ड का मैप होता है. ओके, सो किसी पर्टिकुलर कंट्री का, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का मैप दिखाने के लिए मैप व्यू पे मैं GMS कैमरा पोजीशन सेट करता हूँ अपने GMS मैप व्यू पे. ओके, सो देन GMS मार्कर, किसी भी लोकेशन पे मार्कर सेट कराने के लिए मैं GMS मार्कर क्लास का यूज़ करता हूँ. ओके, देन मैं CL लोकेशन मैनेजर डेलीगेट अप्लाई करता हूँ अपनी क्लास में टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज डेलीगेट फंक्शंस दैट CL लोकेशन मैनेजर क्लास प्रोवाइड. वन ऑफ द फंक्शन इज डिड अपडेट लोकेशंस. सो डिड अपडेट लोकेशंस फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी मेरी डिवाइस की लोकेशन में चेंज होता है. ओके, सपोज़ मेरी डिवाइस की लोकेशन में इवन पॉइंट्स का चेंज आया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो मेरा डिड अपडेट लोकेशन में फंक्शन गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली. ओके, सो मुझे डिवाइस का लैटिट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं CL लोकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा दैट इज़ लोकेशन मैनेजर, जो कि मैंने ऑलरेडी शो किया कैसे बनाना है. ओके, फिर उसकी यूज़ हेल्प से मैं सेल्फ डॉट लोकेशन मैनेजर से डॉट लोकेशन, देन लोकेशन के कोऑर्डिनेट, एंड देन कोऑर्डिनेट में उसका पर्टिकुलर लैटिट्यूड निकाल सकता हूँ. ओके, देन मुझे डिवाइस लैटिट्यूड वेरिएबल में मेरे डिवाइस का करंट लैटिट्यूड मिल जाएगा. सिमिलरली मैं लॉन्गिट्यूड निकाल सकता हूँ, एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के थ्रू मैं मैप व्यू पे अपनी करंट लोकेशन शो करा सकता हूँ. ओके, सो दैट्स इट फॉर थियोरेटिकल पार्ट.
Now let's start practical. Okay, so here's our project. ओके, प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मैंने मेरे स्टोरी बोर्ड में दो व्यू कंट्रोलर बनाए हुए हैं. फर्स्ट इज़ व्यू कंट्रोलर जिस पे मैंने शो मैप का बटन बनाया हुआ है. देन सेकंड इज़ माई मैप जिस पे मैं माई मैप स्क्रीन जिस पे मैं मैप शो कराऊंगा. ओके, यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया हुआ है जिसके ऊपर मैं मैप शो कराऊंगा जिस पूरे व्यू पे. ओके, एंड इस बटन के क्लिक पे मैं इसी स्क्रीन पे सीक बना देता हूँ शो. ओके, अब इसका इस व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिस पे हमें मैप शो कराना है. माई व्यू. लेट्स गो टू माई मैप स्क्रीन. ओके, सबसे पहले यहाँ पे को लोकेशन इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट को लोकेशन. ओके, देन लोकेशन मैनेजर ऑब्जेक्ट बनाते हैं. लोकेशन मैनेजर सी लोकेशन मैनेजर. ओके, देन मैप व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. वेयर GMS. ओके, import Google Maps also. Google Maps GMS map view. Then कैमरे का ऑब्जेक्ट where camera is equal to GMS camera position. ओके, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं CL लोकेशन मैनेजर डेलीगेट. ओके, अब लोकेशन मैनेजर के डेलीगेट को सेल्फ करते हैं. ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज सेट करते हैं. लोकेशन मैनेजर डॉट डिज़ायर्ड एक्यूरेसी. इसमें हमें डिफ़ाइन करना होता है कि हमें व्हेन वी आर फैचिंग लोकेशन फ्रॉम लोकेशन मैनेजर तो हमें डिज़ायर्ड एक्यूरेसी क्या चाहिए. ओके, सो हमारे केस में हम लेके चलते हैं. So as you can see there are multiple options like accuracy for 3 kilometers, for nearest 10 meters, for 100 meters. So जब हम nearest 10 meters करते हैं तो ये हमें हर इसकी accuracy basically 10 meters पे वेरी करती है. ओके, so it will use more battery. Okay, so battery consumption will be more in this case. सो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन करा है कि लोकेशन मैनेजर की सर्विसेज मैं सिर्फ तभी यूज़ करूँगा जब मेरी डिवाइस को लोकेशन यूज़ करना होगा. ओके, अननेसेसरी मैं पूरे टाइम लोकेशन मैनेजर की सर्विसेज यूज़ नहीं करूँगा. ओके, सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड डॉट रिक्वेस्ट व्हेन इन यूज़ ऑथराइजेशन. सो फाइनली मैं इस स्क्रीन पे स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन फंक्शन कॉल कर दूंगा. दिस फंक्शन विल स्टार्ट मॉनिटरिंग द लोकेशन चेंजेस ऑफ माय डिवाइस. ओके, so let's create a custom function show current location on map. इसमें सबसे पहले हम कैमरा सेट करते हैं. लेट कैमरा इज इक्वल टू
GMS कैमरा पोजीशन डॉट कैमरा विद लैटिट्यूड। हम लैटिट्यूड कैसे फेच करेंगे? अपने लोकेशन मैनेजर से, क्योंकि मेरे लोकेशन मैनेजर क्लास के पास मेरा करंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा मेरी डिवाइस का। ओके, सो लोकेशन मैनेजर डॉट लोकेशन डॉट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स से मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज़ लैटिट्यूड। ओके, सो सेम सेल्फ डॉट लोकेशन मैनेजर लोकेशन कोऑर्डिनेट और अब लैटिट्यूड। ओके, देन यहाँ पे मैं जूम डिफ़ाइन करूँगा कि मुझे जो मेरी करंट लोकेशन है इस पे मुझे कितना जूम चाहिए। सो फ़िलहाल के लिए लेट्स यूज़ 14। ओके, लेट्स फिक्स द इश्यूज। ओके, ये तो थी कैमरे की बात। अब मैं मैप व्यू क्रिएट करूँगा। मैप व्यू इज इक्वल टू GMS मैप व्यू डॉट मैप विद फ्रेम एंड कैमरा पोजीशन। फ्रेम के लिए हमने जो ऊपर जो हमने अपने स्टोरी बोर्ड में UI व्यू लिया हुआ है, ओके, हम उसका यूज़ करेंगे। ज़ीरो, एक्स पोजीशन ज़ीरो, वाई पोजीशन ज़ीरो। ओके, विड्थ होगी सेल्फ डॉट माई व्यू, सॉरी, सेल्फ डॉट माई व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट विड्थ। सिमिलरली self dot my view dot frame dot size dot height। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली मेरे मैप व्यू का फ्रेम मेरे जो मैंने स्टोरी बोर्ड में माई व्यू लिया हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। कैमरा पोजीशन में हम यहाँ कैमरा का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ओके, देन हम मैप व्यू पे कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे। मैप व्यू डॉट सेटिंग्स डॉट माई लोकेशन button is equal to true। okay, then map view dot my location enabled भी हम करेंगे true। ठीक है, देन हम क्रिएट करेंगे एक मार्कर, लेट मार्कर GMS मार्कर। ओके, सो मार्कर हमें किस पोजीशन पे सेट करना है? जहाँ पे हमारा कैमरा सेट है, और हमारा कैमरा कहाँ सेट है? हमारी करंट लोकेशन पे। ओके, सो मार्कर की पोजीशन क्या होगी? कैमरा डॉट टारगेट। ओके, मार्कर डॉट स्निपेट। मार्कर डॉट स्निपेट्स में मैं वो टेक्स्ट लिख सकता हूँ जो भी मेरे मार्कर के क्लिक पे शो होगा। ओके, सो इसे लिख देते हैं करंट लोकेशन। ठीक है, और देन मार्कर की अपीयरेंस का एनिमेशन भी सेट कर सकते हैं हम। ओके, जीएस फाइनली हम मार्कर को मैप व्यू पे ऐड कर देंगे। ओके, मार्कर डॉट मैप इज इक्वल टू मैप व्यू। ओके, एंड फाइनली हम मैप व्यू को अपने माई व्यू में ऐड कर देंगे। ऐड सब व्यू मैप व्यू। ओके, सो अपनी पी लिस्ट फाइल में लोकेशन परमिशन लेते हैं। ओके, ओके, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई भी स्ट्रिंग टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और ऐप इज़ यूजिंग लोकेशन
सर्विसेज। ओके, सो हमने ये फंक्शन बनाया तो है, शो करंट लोकेशन ऑन मैप, बट इसे कॉल नहीं किया। ओके, सो इसे कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे सी एल लोकेशन मैनेजर का डेलीगेट फंक्शन, दैट इज़ डिड अपडेट लोकेशंस, डिड अपडेट लोकेशंस। ओके, यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, शो करंट लोकेशन ऑन मैप। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और बाकी है। जैसे ही मैं लोकेशन मैनेजर के थ्रू स्टार्ट अपडेटिंग लोकेशन करता हूँ, तो मेरा लोकेशन मैनेजर मेरे लोकेशन चेंजेस को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो जैसे ही से मेरी लोकेशन में फर्स्ट चेंज मिला, तो इसने शो करंट लोकेशन ऑन मैप शो कर दिया। ओके, जिस फंक्शन के थ्रू कॉल कर दिया शो करंट लोकेशन ऑन मैप, जिस फंक्शन के थ्रू मेरे व्यू पे मैप सेट हो गया। ओके, देन जैसे जैसे चेंज होता रहा, अगेन ये फंक्शन कॉल होगा, एंड अगेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस कैमरा के और मैप व्यू के बनते जाएंगे, और मेरे माई व्यू पे मल्टीपल मैप सेट होते जाएंगे। ओके, दैट थिंग आई डोंट वांट। तो व्हाट आई वांट इज़ कि जब मुझे एक बार लोकेशन मिल जाए, तो उसके बाद लोकेशन अपडेशन स्टॉप हो जाए। तो स्टॉप अपडेटिंग लोकेशन। ओके, सो आई गेस वी आर गुड टू गो नाउ। लेट्स, अब मैंने मैप व्यू एंड कैमरा के ऑब्जेक्ट्स यहाँ लोकली बना लिए हैं, तो मुझे इन ग्लोबल वेरिएबल्स की भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स बिल्ड एंड टेस्ट आवर ऐप। सो वन मोर थिंग, जैसे हमारे डिवाइस में जीपीएस होता है करंट लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए, वैसे हमारे सिम्युलेटर में कोई जीपीएस नहीं होता, तो हमें यहाँ पर मैन्युअली लोकेशन सेट करनी पड़ती है। ये जियो लोकेशन का आइकन, यहाँ से सपोज़ मैंने लंदन लोकेशन मैन्युअली सेट करी, तो दिस विल सेट द करंट लोकेशन ऑफ द सिम्युलेटर एज लंदन। ओके, तो शो मैप पे क्लिक करा। ओके, इसने लोकेशन के लिए पूछा। ओके, अलाउ किया। सो एज यू कैन सी इसने लंदन लोकेशन मैप व्यू पे शो कर दी। ओके, अब लोकेशन चेंज करके देखते हैं, जोहानिसबर्ग। ओके, सो नाउ जोहानिसबर्ग मेरी करंट लोकेशन मेरे मैप व्यू पे सेट हो गई। ओके, अगेन लेट्स चेंज द लोकेशन टू मुंबई इंडिया। ये गूगल मैप का इनबिल्ट करंट लोकेशन बटन है। ओके, इसके क्लिक पे मैं जहाँ भी मैप में हूँ, लाइक मैं इस मैप को ड्रैग करते करते कहीं भी चले जाऊँ, इस पे क्लिक करके आई विल अगेन come back to my current location. Okay, so that's it for Google Maps. Okay, so thanks for watching this episode. See you in the next one.